happy. So today we are going to begin with the lesson number 1 of your class 8 computer, that is computer networks. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the network. What do you mean by network? Secondly, we are going to study about network architectures. And third, we are going to study about accessing data and information through a network. And the last one is security of networks. So let's begin with network first. So a computer networking is a group of interconnecting modes of computer devices that exchange data and resources with each other. So एक computer network क्या होता है? एक group होता है जो interconnected होता है mode से, different computer devices से and exchange करता है अपने data को, resources को एक दूसरे से. So computer network can either be wired or wireless. So एक आपका computer आपका wired भी हो सकता है, आपका network wired भी हो सकता है, wireless भी हो सकता है. Like Wi-Fi is wireless. So a wired network uses cables to connect devices to the network. So एक wired network होता है उसमें आपको cables की, data cables की need होती है उसे connect करने के लिए. But a wireless network uses wireless equipments like Wi-Fi routers for connecting to the network. एक wireless networks होते हैं उनको सिर्फ wireless equipments की need होती है, which is जैसे आपके Wi-Fi routers हो गए, hotspots हो गए, connect करने के लिए network से. Devices which support a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites or infrared light beams. So devices जो support करती है आपके network को किससे connect, वो किससे linked होती है आपकी cables से, telephone से, satellite से, radio से, telephone lines से and infrared light beams से. So the earliest form of network was reported in 1950s. सबसे पहले earliest form जो network का था कब आया था? 1950s में आया था. When the US military uses a radar system, the US military क्या use करती थी? Radar system को use करती थी. The internet is formed by the network of millions of computer all over the world. Internet कैसे बनता है? जो millions of जो network होते हैं, millions of computers के पूरे world में उसको connect करके बनता है. So it is also called the largest network of computer of worldwide network. So ये क्या है? largest network है आपके computers का, उसको क्या कहते हैं? WAN, that is worldwide network. So first, next is significance of a network. क्या क्या significance है हमारे network के? Network में have made communication cheaper, more effective, more efficient, faster, and have also helped in making sharing of resources easier. So आपके network ने क्या करा है? Communication को cheaper कर दिया, बहुत ज़्यादा effective कर दिया, efficient कर दिया, faster कर दिया और आपके help करता है network को resources को share करने में easily. Let us see how networking can help us. कैसे करती है networking हमें help? Centralized saving of data and information. क्या करती है? आपके save करती है आपकी data को, information को. It is easier to find the information and data when it is stored at a centralized location. So बहुत ज़्यादा easy होता है आपको किसी भी information को find करना, किसी भी data को find करना जब वो एक centralized जगह पे saved है, centralized location पे save है, then trying to locate it in different devices. फिर उसे हम different devices में भी locate कर सकते हैं और या फिर हमें ये बहुत ज़्यादा centralized इसलिए भी easy हो जाता है कि हम जगह जगह उसको ढूंढने की need नहीं पड़ती. Then next is storage media. When a computer network is established, जब आपका computer network establish हुआ था, one computer act as the main computer of the server. जो एक computer होता है उसे हम server की तरह रख देते हैं, act करता है, उसको वो server की तरह act करता है. This server serves और distributes the software और hardware. ये serve करता है, distribute करता है आपके software को या hardware को that other network computers would need. This enables all computer in a network to retrieve the data stored in the main servers. So ये क्या करता है? Enable करता है computer के network को retrieve करने के लिए data को जो stored होता है आपके main server में. Now effective backup. More than one copy of important document can be saved on another network computer or server. So एक से ज़्यादा copy save होती है आपकी important documents की एक server पे या network computer पे. If one computer system faces hardware failure, अगर एक system में hardware failure हो जाता है, then the data can be retrieved from the backup stored on the network. So आपका जो data होता है वो retrieve हो सकता है दूसरे network से. This also allows you to work seamlessly. सब seamlessly work कर सकते हो or any other computer because the data can be stored and accessed from any location on the network. इससे आप कहीं से भी data को store कर सकते हो, कहीं किसी भी location से access कर सकते हो. So sharing information can easily be shared among the computers connected via network.
नेटवर्क से जो कनेक्टेड होता है आपके कंप्यूटर्स, वहां से आप इंफॉर्मेशन और डेटा अपना इजीली शेयर कर सकते हैं. नाउ मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इजी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाता है. लाइक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ easier troubleshooting from the same point and is also helpful in effective allocation of resources. So ये क्या करता है, आपकी ट्रबल शूटिंग को मतलब बहुत ज्यादा इजियर कर देता है एक सेम पॉइंट से, और आपको हेल्पफुल होता है आपकी इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में. नाउ कॉस्ट इफेक्टिव, networking is cost effective as many hardware devices are shared. कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे बहुत सारे नेटवर्क्स आपके हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर होता है, तो द कॉस्ट इज रिड्यूस, इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस्ड होती है. दिस आल्सो अप्लाइज टू द मेन लाइसेंस सॉफ्टवेयर. किस पर अप्लाई होता है, आपका मेन लाइसेंस सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होता है, व्हिच कैन बी शेयर्ड इन अ नेटवर्क. नाउ स्पीड एंड सिक्योरिटी. So networking allows data to be shared and transferred faster. जो आपकी नेटवर्किंग होती है वो आपके डेटा को अलाउ करती है फास्टर शेयर करने में, ट्रांसफर करने में, than any other medium across the world. सबसे ज्यादा फास्ट आप नेटवर्किंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो. So different files and programs on a network can be secured by adding a password or limiting the access of to specific users. So आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो. कैसे? Reduces wastage. So नेटवर्किंग अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर सॉफ्ट कॉपीज. तो नेटवर्किंग क्या करती है, अलाउ करती है कंप्यूटर को शेयर करने के लिए, मतलब सॉफ्ट कॉपीज शेयर कर सकते हो आप. सो दस रिड्यूसिंग द नीड फॉर शेयरिंग एंड सेंडिंग हार्ड कॉपीज. इससे क्या होता है कि आपको हार्ड कॉपीज सेंड नहीं करनी पड़ती, सॉफ्ट कॉपी से मेल्स के थ्रू या किसी के थ्रू आप शेयर कर सकते हो. सो देयरबाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एज अनयूजेबल डाटा in the form of soft copy can be discarded easily. इसको हम easily discard कर सकते हैं. Now parts of a network, क्या क्या parts होते हैं नेटवर्क के? A network requires various components for effective and efficient functioning. एक नेटवर्क को बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए. These components are network interface card, that is NIC. It is a principal hardware device. क्या होता है आपका प्रिंसिपल हार्डवेयर डिवाइस होता है that connects a computer to the network, जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है नेटवर्क से. It differentiates between a network computer and a stand-alone computer. एक ये नेटवर्क कंप्यूटर में एक stand-alone कंप्यूटर में डिफरेंशिएट करता है. Now every computer in the network has NIC which has port that enables to join the network cables to the computer. So हर कंप्यूटर में क्या होता है, एक NIC होता है जिसमें क्या होता है, एक पोर्ट होता है जिसकी वजह से आप ज्वाइन कर सकते हो नेटवर्क को, नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से. NIC are put separately into the computers or are inbuilt. ये तो या तो आप इसको सेपरेटली पुट कर सकते हो ये, या फिर इनबिल्ट होते हैं आपके कंप्यूटर्स में. Now communication media, they are channel in form of wires and cables in wired network and radio waves in wireless networks. So they interconnect nodes on a network. ये क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं आपके नोड्स को आपके नेटवर्क के. Now here is a flow chart of a communication media. So there are wired and wireless. So वायर्ड में क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं, कोशियल केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है. वायरलेस में क्या क्या होता है, ब्लूटूथ हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई और रेडियो वेव्स हो गई. अब हमारे वायर्ड में क्या क्या होता है, यूटीपी और एसटीपी. यूटीपी इज अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड द एसटीपी इज शील्ड ट्विस्टेड पेयर. Now first let's talk about wired network. So electrical cables listed twisted pair, coaxial cable और optical fiber are used to carry signal from one end to the another. ये एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल को कैरी करती केबल्स के थ्रू. Wireless network, they do not use cable. इनको केबल की जरूरत नहीं होती. Instead the signals are transmitted using Bluetooth. क्या ट्रांसमिट होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं ब्लूटूथ को यूज करके, इंफ्रारेड को यूज करके, माइक्रोवेव्स को और रेडियो वेव्स को यूज करके. दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड लैपटॉप. किसमें यूज होती है टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स में होती है, टैबलेट्स में होती है और आपके लैपटॉप्स में होती है. नाउ हब स्विच. Hub switch is a device that connects a number of computers together to form a network. ये क्या होता है, ये आपका एक डिवाइस होता है जो आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर को एक कंप्यूटर में एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है. So it provides an interface for connection of computers. ये क्या एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कनेक्शन, आपके कंप्यूटर के कनेक्शन के लिए, जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन देम. So it acts as a primary point through which all the computers of a network are connected. ये क्या करता है, प्राइमरी पॉइंट की तरह एक्ट करता है जिससे आपके विच ऑल द कंप्यूटर्स, जो आपके सारे कंप्यूटर्स होते हैं एक नेटवर्क के, वो कनेक्टेड होते हैं. नाउ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट जॉइंस अ डिजिटल कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीफोन लाइन. मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो जॉइन करता है डिजिटल कंप्यूटर को
एक एनालॉग टेलीफोन लाइन से, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को टू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। इट हैज एंटीनास व्हिच फर्दर इंक्रीज द रेडियस, इसमें क्या होता है, एंटीनास होते हैं जो इंक्रीज करता है रेडियस को, हाउ फार द सिग्नल कैन ट्रैवल, की जहां तक सिग्नल आपका ट्रैवल करता है। नाउ केबल्स एंड कनेक्टर्स, cables are integral part of modern networking structure। cables क्या होती है, इंटीग्रल पार्ट होती है आपकी मॉडर्न नेटवर्किंग स्ट्रक्चर की। they are in twisted form and are used along with the connectors। ये क्या होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म होते हैं और ये कनेक्ट मतलब किसके साथ यूज होते हैं, कनेक्टर्स के साथ यूज होते हैं। RJ45 connectors are used for twisted pairs of cable to connect with the NIC card। so क्या यूज होते हैं, RJ45 के कनेक्टर्स यूज होते हैं twisted paper। Now, do you know? So, a server is a computer or device or a program that is dedicated to managing network resources। एक सर्वर क्या होता है, आपका एक कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस होता है, एक प्रोग्राम होता है जो किस लिए डेडिकेटेड होता है, मैनेज करने के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो नेटवर्क कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, लेट अस स्टडी देम इन डिटेल। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज PAN, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो इसमें क्या होता है, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क, ये स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है which is personal to a user's workspace, जो एक यूजर के वर्कस्पेस तक लिमिटेड होता है। PAN has a connectivity range up to 10 meters, इसकी कनेक्टिविटी रेंज कितनी है, 10 मीटर तक की, 10 मीटर्स तक की इसकी कनेक्टिविटी रेंज होती है। इट में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड्स होता है, माउस होता है, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स होते हैं, आपके वायरलेस प्रिंटर्स होते हैं, टीवी रिमोट्स होते हैं, वाईफाई आल्सो। सो फॉर एग्जांपल पिकोनेट इज अ ब्लूटूथ एनेबल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। पिकोनेट क्या है, आपका ब्लूटूथ एनेबल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क है which may contain up to 8 devices connected together। इससे आप 8 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। Now next is local area network। A local area network is used to connect personal computers in a room, building or campus using cables and connectors। So एक local area network होता है जो कनेक्ट करता है रूम में, बिल्डिंग में, कैंपस में, cables के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू। LAN is extensively in office as it enables users to resources like printers, scanners, plotters, speakers, etc. on a common basis। So ये क्या होते हैं, आपकी ऐसी बिल्डिंग्स में होते हैं, ऑफिसेस में होते हैं जो इनेबल कर देता है आपके यूजर, जिससे आप यूज कर सकते हो प्रिंटर्स को, अपने स्कैनर्स को, प्लॉटर्स को, स्पीकर्स को एक कॉमन बेसिस पे। नाउ डू यू नो, इफ अ LAN इज सेट अप यूजिंग वायरलेस मीडिया इट इज नोन एज LAN। अगर आपका LAN आपका वायरलेस मीडिया को के साथ सेटअप होता है तो उसको हम LAN कहते हैं, दैट इज wireless LAN। Now MEN, that is metropolitan area network। So a metropolitan area network is a network that is used to connect personal computers or other electronic devices। जो किस लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, such as mobile and televisions in an entire city। पूरी सिटी में कनेक्ट कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट वेरियस लैंड्स लोकेटेड इन सेम सिटी। ये किस लिए यूज होता है, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे लैंड्स को जो लोकेटेड होते हैं सेम सिटी में। A very good examples of MEN is the cable through which broadband internet connection is provided। एक गुड एग्जांपल है MEN का, क्या होता है, केबल होता है थ्रू जिससे आपकी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस जिससे आप प्रोवाइडेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। जिससे आप पर्सनल कंप्यूटर को एक लार्ज बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स में। सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ WAN इज द इंटरनेट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट हो गया। WANs are generally used for very large companies और गवर्नमेंट एजेंसीज। जनरली किसके लिए यूज होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज होता है, कंपनीज, बहुत सारी बड़ी कंपनीज के लिए यूज होता है। दे रिक्वायर पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीकम्युनिकेशन लाइंस और सैटेलाइट सिग्नल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डाटा। The examples of WAN include, जिसमें क्या क्या होता है, ATM फैसिलिटीज इंक्लूडेड होती है, ई-बैंकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूड होती है। नाउ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। So the overall structure and uses of computer network is defined according to its network architecture। कैसे डिफाइंड होता है, उसकी नेटवर्क आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ प्राइमरी डिवाइडेड इनटू पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्व नेटवर्क। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिवाइडेड होते हैं जो क्लाइंट को सर्व, मतलब क्लाइंट होते हैं या फिर आपका सर्वर नेटवर्क होता है उससे।
Now peer-to-peer network, that is P2P. A peer-to-peer network is called P2P network is a group of computers. ये क्या होता है? Group of computers होते हैं each other where each computer acts as a mode of sharing information within the group. So क्या होता है? हर कंप्यूटर क्या होता है? नोड ऑफ शेयरिंग की तरह मतलब एक्ट करता है लाइक विद इन द ग्रुप. एक ग्रुप में देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड सर्वर. एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर यहाँ पे नहीं होता, कोई भी नहीं होता. द स्ट्रक्चर इज रियली यूज्ड इन होम बेस्ड नेटवर्किंग व्हिच अलाउज कॉमन शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज अमंग द कंप्यूटर्स इन्वॉल्व. ये कहाँ पे होता है? होम बेस्ड नेटवर्किंग में होता है, जहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर आपका शेयरिंग होती है, आपकी कॉमन शेयरिंग होती है आपके डेटा की, रिसोर्सेज की, आपके कंप्यूटर्स में जो इन्वॉल्व होते हैं. Among the computers involved, जो आपके computers involved होते हैं उसमें. The means that computers connected in P2P network works as a node and doubles up as a server. कैसे वर्क करते हैं? नोड की तरह वर्क करते हैं और कैसे कर देते हैं? डबल अप कर देते हैं सर्वर की तरह. The common problem that P2P network encounters are piracy and illegal file sharing. इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? आपकी पायरेसी की आ जाती है, आपकी इलीगल फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है. Now the next is client-server network. This type of network structure functions between the server and the client computer. कैसे वर्क करते हैं? The type of network structure functions मतलब सर्वर और आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स के बीच में करते हैं. There is a one centralized and powerful computer. एक centralized और powerful computer होता है that act as a server which is bub for other connected computer. जो एक सर्वर की तरह एक्ट करता है, जो बब होता है other connected computers का, mostly personal. So the computer which act as a server controls various resources. जो एक कंप्यूटर एक्ट करता है सर्वर की तरह, वो कनेक्ट करता है बहुत सारी रिसोर्सेज को और प्रोवाइड एज वेल एज शेयर्स डेटा, प्रोवाइड करता है और शेयर करता है डेटा, प्रोवाइड्स द एंड शेयर द डेटा among the clients computer. So the computer which requires different data and information. तो जिस कंप्यूटर को क्या रिक्वायर होता है? डिफरेंट डेटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड सपोर्ट द वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर टू फुलफिल डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड क्लाइंट्स. उसको क्या कहते हैं? हम क्लाइंट्स कहते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल Xbox. क्या एग्जांपल? Xbox हो गया, लाइव एंड प्ले स्टेशन हो गए प्लस, एंड act as clients when they connect to the network. कैसे एक्ट करते हैं? क्लाइंट्स की तरह एक्ट करते हैं जब वो कनेक्ट होते हैं आपके नेटवर्क से. They contact their respective servers to access gaming updates. ये contact करते हैं आपके respective servers से access करने के लिए gaming updates को, live gameplay and demos etc. Now accessing data and information through a network. कैसे करते हैं access data information किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू. When the computer that is part of network is accessed, जो आपका कंप्यूटर होता है जो पार्ट होता है आपके नेटवर्क को, वो एक्सेस हो जाता है. All the other computers which are also a part of the network can be seen. जो भी कंप्यूटर जो आपके पार्ट होते हैं नेटवर्क के, उनको हम देख सकते हैं. We can share data and information from our computer to other computers or retrieve data. हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के कंप्यूटर से, मतलब एक दूसरे के कंप्यूटर में डेटा और रिट्रीव कर सकते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर कंप्यूटर. दूसरे कंप्यूटर से भी रिट्रीव कर सकते हैं. Now let's learn how to do so. हम कैसे कर सकते हैं इसको? So step 1 is double click on the network icon. आपको डबल क्लिक करना है नेटवर्क आइकन पे जो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, या फिर आपको नेटवर्क क्लिक ऑन द नेटवर्क ऑप्शन प्रेजेंट इन द पेन ऑन लेफ्ट स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन. जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेटवर्क पे, आप उस पर क्लिक कर सकते हो. Now when the network option is clicked, जब आपका नेटवर्क ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, all the computer connected to the network will be shown. जो भी कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क से, वो सारे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे. Now double click on the computer you want to access. फिर आपको डबल क्लिक करना है उस कंप्यूटर पे जिसको आपको एक्सेस करना है. Now upon clicking on the computer you want to access, you will be able to view the file shared. आप देख सकते हो कि जो फाइल शेयर हुई है उस कंप्यूटर के थ्रू, यूजर ऑफ दैट कंप्यूटर. You can share the data or information you want to share by copying it from your system. आप शेयर कर सकते हो डेटा जो आपको शेयर करना है, बस कॉपी करके उस सिस्टम को एंड पेस्टिंग इट ऑन द शेयर्ड फाइल, और जस्ट आपको पेस्ट करना है दूसरी फाइल पे. You can also retrieve information by copying data. आप रिट्रीव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन बस कॉपी करके डेटा को, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सिस्टम्स एंड पेस्टिंग इट इन योर ओन कंप्यूटर. आप इसको अपने आप अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हो. नाउ सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क्स. When you establish a network, you allow a number of people to access. जब आप एक establish करते हो एक नेटवर्क को, आप allow करते हो number of people को access करने के लिए, share करते हो important data stored in computer. जो important data आपके कंप्यूटर में stored होता है. So it becomes extremely important that the network is protected. तो ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है कि आपको अपने नेटवर्क को protect करके रखना है, and unwanted access and the usage of either is either prohibited or controlled. For this purpose the network needs to be secure. इस पर्पस के लिए आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहिए.
So there are generally two ways. दो तरीके होते हैं इसको सेव रखने के, which a network can be secure. So let us learn about both of these in a detailed manner. First one is login security. So in this security measure, all the users want to access the data. इसमें क्या होता है, सारे users को access करना होता है data को, are given in unique username, एक unique username में दिए हुए होते हैं आपको, and passwords में. Only those people who have a username, जिन लोगों पे ही username है और password है, वही access कर पाते हैं उस data को. Now right security is a step forward to login security. ये होता है मतलब step होता है आपकी login security में. This security measure grants access rights. मतलब आपको लिमिटेड एक्सेस राइट्स देता है आपको टू यूजर डिपेंडिंग ऑन द यूजर नेम. जो आपके यूजर नेम पे डिपेंड करता है आपके एक्सेस राइट्स पे. इसलिए आपकी जो एक्सेस राइट होती है वो लिमिटेड होती है टू सर्टेन फोल्डर्स, which means that the user can only access folders pertaining to his or her own work. तो इसका मतलब होता है कि यूजर खाली उन्हीं फोल्डर्स को ओपन करता है जो उसके वर्क के होते हैं. नाउ डू यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग मीनिंग स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा. क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मीनिंग होता है, स्टोर करना, एक्सेस करना डेटा को ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव. सो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गई, गूगल ड्राइव हो गई, एप्पल आईक्लाउड हो गया आपका, जो आप इंटरनेट को आप डिफरेंट सिस्टम्स में भी यूज कर सकते हो इसको. If someone tries to access someone else files, अगर कोई और एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस करना चाहता है, और राइट प्रोहिबिटेड मैसेज विल पॉप अप ऑन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर विल बी इन्फॉर्म. तो इससे क्या होता है कि राइट एक मैसेज आएगा जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उस पे वो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा दैट एन अनऑथराइज्ड पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, की कोई एक अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.